गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। हम जूलॉजी पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज द एंटीजन। ठीक है, इन लास्ट वीडियो वी हैव डन द टाइप्स ऑफ एंटीजन्स एंड टुडे वी आर डूइंग द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीजन्स। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर of antigen. First of all, in every antigen इसी में लिखेंगे every antigen has some immunological active regions or antigenic determining sites. Every antigen has some antigenic determining sites on its surface which is known as epitope. The antibody also has antibodies also have binding sites on its surface which called as paratopes. देखो, सपोज करो this is the antigen. And this is a antibody. So the antigen and antibodies both are having a binding sites or a determining site. So the antigen having the determining sites, so it can be bind with its own antibodies and this determining site is known as the epitope.
This is the antigen and this is the determining site. On this side it's bind with the antibody कि ये अपनी बॉडी से यानी कि अपने ही एंटीबॉडीज के साथ क्या कर सके, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन कैन बी created. So the binding site, either a determining sites of antigen, is known as the epitope, and the binding site of antibody is known as the paratope. So there on the antigen antibody reaction, there has a reaction as a lock and key. The binding sites, either a determining sites, are bind with each other as a की एंड लॉक सिचुएशन कि पर्टिकुलर कीज के लिए पर्टिकुलर एंटी क्या होती है, की होती है. सो विद द पर्टिकुलर एंटीजन्स फॉर टू बाइंडिंग विद द पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, द एंटीजन्स हैविंग अ डिटरमाइनिंग साइट्स. ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे. और in an antigen antibody reaction, in an antigen antibody reaction, antigen antibody reaction, the epitope of antigen, the epitope of antigen, epitope of antigen combined with the paratope of antibody, paratope of antibody in a lock and key pattern, in a lock and key pattern, lock and key pattern. ठीक है, नोट डाउन किया. Now we are talking about the MHC antigen. We are talking about the MHC. What these are? तो इसको पढ़ने से पहले हमें पहले एक बार क्या देखना पड़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन की. एंटीजन और एंटीबॉडीज में किस टाइप से क्या होता है, वर्किंग होती है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस टाइप से वर्क करता है. ठीक है, तो एक बार हम पहले जो बैक क्लासेस थी उसकी कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं, तब जाकर हम अपने किस पे आएंगे, इस टॉपिक के ऊपर आते हैं. MSC. व्हाट इज द MSC? सो MSC आर द क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी molecules. They are the major histocompatible complex. MSC, the full form of the MSC is the major histocompatibility complex. These are the antigens. Those are found in all vertebrates animals. These MSC antigens are found in all vertebrates animals in all of the cells, and these are categorized as a MSC1, MSC2 and MSC3. They have categorized into a
डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम देखते हैं। We are talking about the immunity. There has a two type of immunities. We are talking about the two type of immunity. One is the innate immunity and second one is the acquired immunity. Two types की बात करी थी हमने. In a innate immunity there has a four type of barriers. ठीक है, innate immunities it means this is the non-specific immunity, and in a innate immunity some of the structures are found by birth in the animal's body, and due to these structures they working as a part of innate immunity. So there has a four type of innate immunities barrier. First are known as the physical barrier, second one is the physiological barrier, ये हम लास्ट क्लास में स्टडीज कर चुके हैं. थर्ड वन इज द सेल्यूलर barriers and last one is the cytokine barrier. ठीक है, the acquired immunities is working by the acquired immunity is having a which type of immunities in our acquired we get immunity by antigens reaction. This type of acquired immunity we are getting these type of immunities. तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं innate immunities में? The physical barrier, suppose the skin, mucous membrane, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. स्किन के ऊपर क्या होती है? देयर हैज़ अ डेड लेयर ऑफ क्यूटिकल. सो अगर आपकी स्किन क्या नहीं हो, कोई कट नहीं हो, ब्रीच नहीं हो, इट मीन्स दैट टाइम योर स्किन इज क्या होगी, इम्परमेबल फॉर द एनी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अदर बैक्टीरिया. कि जब तक आपकी बॉडी पे कोई कट नहीं है तो क्या होगा, कोई भी पैथोजेंस आपकी बॉडी की आउटर साइड पर अटैक नहीं कर सकता. किसी ने प्यूक किया है या किसी ने कुछ डर्टी चीज़ें आपके ऊपर फेंकी हैं, सो आपकी बॉडी के आउटरली पार्ट्स पर यानी कि जहाँ स्किन होती है अगर वो उसके कांटेक्ट में आती है और अगर वहाँ पर कोई कट नहीं है, सो दीज पैथोजेंस कैन नॉट बी अफेक्टेड यू. ठीक है, सेम थिंग्स द म्यूकस आर देयर. सपोज करो कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में माउथ से गया, तो माउथ में क्या होती है, गोबलेट सेल्स होती हैं, दे सिक्रेटेड द म्यूकस. तो बैक्टीरिया उसी में क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है. फिर हम बात करते हैं ना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इन अ फिजियोलॉजिकल बैरियर इन अ टीयर ग्लैंड्स एंड इन अ सलाइवा देयर हैज़ अ लाइसोजाइम एंजाइम्स. फिर क्या होता है, HCl होता है ना स्टमक. क्या होता है, लाइसोजाइम इन टीयर एंड सलाइवा. फिर सेकेंड थिंग बात क्या करते हैं, फिर क्या होते हैं इसके अलावा, सीरुमेन. So these are the physiological, either a chemical barrier, those are attacking on the pathogen. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना cellular barrier, there has a some of the cells, it means WBC cells. WBC cells are working as a cellular barrier. जो WBC की सेल्स होती हैं, इयोसिनोफिल्स या हम कह सकते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस या हम कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोसाइट सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स. दे ऑल आर कम इन द सेलुलर बैरियर. इन अ साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स आर कमिंग इन दिस बैरियर. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये सेलुलर बैरियर है. तो हमने बात करी थी दैट ईच ऑफ द सेल की जो बॉडी के अंदर सेल है, ईच ऑफ द, अगर सपोज करो मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी में मेरी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स पर मेरे एंटीजेंस हैं.
ठीक है। और मेरी बॉडी पर यानी कि मेरे सेल्स में जो एंटीजन्स होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज होगी। लेकिन वो क्या है, एंटीजन्स मेरी बॉडी के हैं, तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन इज नॉट बी देयर, कि वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडीज की रिएक्शंस नहीं है। सपोज करो किसी बैक्टीरियाज ने मेरी बॉडी पे अटैक किया एंड दोज एंटीजन, अब वो किसी बैक्टीरिया ने मेरी बॉडी में क्या किया, अटैक किया, तो वो बॉडीज में क्या हो गया, वो बॉडी में कहाँ गया, इट्स एंटर इनटू अ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में क्या गया, बैक्टीरिया गया। बैक्टीरिया इज हैविंग अ सेल, बैक्टीरिया खुद क्या है, एक सेल है। सो दिस सेल इज हैविंग इट्स ऑन एंटीजन। अब ये बैक्टीरिया जब मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर कुछ सेल्स आती हैं, दे रिकॉग्नाइज, कि वो उस सेल को देखते हैं। कौन सी सेल्स आती हैं, द WBC सेल। तो WBC में से सबसे पहले कौन आएगा इस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने, फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रोफिल्स, कि बॉडी में कभी भी कोई जो फर्स्ट इन्फेक्शंस होता है उस फर्स्ट इन्फेक्शंस में सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करता है, दिस इन्फेक्शन इज रिकॉग्नाइज बाय द न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स किसे रिकॉग्नाइज करेगा, इस पर प्रेजेंट एंटीजन्स के थ्रू, कि इस बैक्टीरिया पर जो एंटीजन्स लगाए। मेरी बॉडी की सेल है, अब मेरी बॉडी की सेल्स पर क्या होते हैं, जो एंटीजन्स लगे होंगे, इन बॉडी के सेल्स के एंटीजन्स को, मेरी बॉडी की सेल्स पर जो एंटीजन्स लगे होते हैं, दीज एंटीजन्स आर नोन एज द MHC1। अभी हम देखेंगे MHC1 की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। These the antigens, those are found in the cell of body. Those antigens are found in the cell of body. These antigens are known as the MHC1 antigens. ठीक है, बैक्टीरिया आया। अब बैक्टीरिया, these are the antigens of my body. ये मेरी बॉडी के एंटीजन्स हैं एंड these antigens are not recognized by these न्यूट्रोफिल्स। वो जो न्यूट्रोफिल्स की क्या होगा, बॉडी में आएंगी सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल्स ने देखा अब इस पे मेरी बॉडी के एंटीजन्स हैं, तो न्यूट्रोफिल्स इसको नहीं खाएगा, ठीक है, इसको डेड नहीं करेगा। अब न्यूट्रोफिल्स जब यहाँ आता है और ये देखता है कि ये किसी बैक्टीरिया का है, किसकी सेल है ये, बैक्टीरिया, इस पर एंटीजन्स जो लगे वो इसके एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेगा। दिस न्यूट्रोफिल इज रिकॉग्नाइज, दिस इज द एंटीजन ऑफ, कोई मेरी बॉडी का एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन बाहर से आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, इसको डेड करने की कोशिश करता है। तो फर्स्टली फाइटिंग किसकी होती है, इम्यून सिस्टम में फर्स्ट फाइटिंग विद द न्यूट्रोफिल्स। बट न्यूट्रोफिल्स कभी कभी क्या करता है सॉरी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, रैपिड ग्रोथ कर रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, यानी कि बैक्टीरियाज की जो कॉलोनीज है, बैक्टीरियाज इंक्रीज कर रहा है। अगर बैक्टीरियाज इंक्रीज हो रहे, इट मीन दे हैव प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन इन योर बॉडी। अब क्या होगा, किन बैक्टीरियाज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स। बट न्यूट्रोफिल्स आर द कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज वेरी लो। कैसी होती है, स्मॉल सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को इजी गोइंगली डेड नहीं कर पाती। देन न्यूट्रोफिल्स के बाद कौन आती हैं, मैक्रोफेजेस। कौन आती है, मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेज कौन सी सेल्स होती हैं, मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स भी हमने देखा था, द मोनोसाइट्स इज वर्किंग एज अ मैक्रोफेजेस सेल्स, दीज आर ऑल्सो द फैगोसाइटोटिक सेल। अब मैक्रोफेजेस की कैपेसिटी क्या होगी, न्यूट्रोफिल से ज़्यादा है। मैक्रोफेजेस की कैपेसिटी कैसी है, न्यूट्रोफिल से ज़्यादा। तो वो क्या कर रहा है, मैक्रोफेजेस इन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब जब ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या करेगा, इन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का, या एक साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। बट बैक्टीरिया जो मैक्रोफेज है वो भी अब क्या है, कैपेबल नहीं है।
अब जो मैक्रोफेजेस सेल होती है दे रिलीज सम केमिकल, ठीक है, कि हमारे ये क्या कर रहे हैं, एक स्टिमुलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, इम्यून सिस्टम को, यानी कि WBC है ये एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करके क्या करते हैं कि देयर हैज़ अ इंक्रीजमेंट ऑफ, या हम कह सकते हैं देयर हैज़ अ इन्फेक्शंस ऑफ, इंक्रीजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, कि कोई फॉरेन बैक्टीरियाज बॉडी में एंटर है और वो क्या कर रहा है कि उसको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल नहीं है. सो दैट टाइम a new cell has coming which are known as dendritic cell. This is the dendritic cell. The dendritic cell are also known as the brain of immune system. जो dendritic cells होती हैं, these dendritic cells these dendritic cells are known as the brain of immune system. क्या है ये, brain of immune system है. And this dendritic cell is also having a antigen. So those antigens are found on the dendritic cells. These antigens are known as the MSC2. कौन से होते हैं इन पर, MSC2 antigens are found on the dendritic cells. समझ में आया. तो MSC1 antigens तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, in all the cell of body of vertebrate animals there has a antigen and these antigens are known as the MSC1 antigens. The dendritic cells which stimulate the, क्या करेगी, dendritic cells which is known as the brain of immune system. ये dendritic cell अभी हम देखेंगे आगे क्या वर्क करती है. तो dendritic cells पे जो antigens लगे होते हैं, these antigens are known as the MSC2 antigens. अब ये dendritic cells क्या करती हैं, इन बैक्टीरियाज को तोड़कर, यानी कि इन बैक्टीरियाज को क्या करती है, तोड़ती है और उनके एंटीजेंस को अपने एंटीजेंस के ऊपर लगा लेती है. क्या करेगी ये डेंड्रिटिक सेल्स जो फॉरेन बैक्टीरिया के एंटीजेंस के कुछ पार्ट होते हैं उन पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेती है. ठीक है. अब सपोज करो किसने क्या किया, बैक्टीरिया के एंटीजेंस को अपने ऊपर लगाया, तो मैक्रोफेज इसको खाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये फॉरेन एंटीजेंस हो गया, बट उसके पास ऑलरेडी क्या है, MSC2 एंटीजेंस है. दैट्स व्हाई मैक्रोफेज इज नॉट ईटिंग द डेंड्रिटिक सेल. समझ में आया कि ये एंटीजेंस किसके होंगे, खुद के हैं. अब ये डेंड्रिटिक सेल्स क्या करती हैं, दिस डेंड्रिटिक सेल इज एंटर इनटू द लिम्फ नोड. कहाँ जाती है, दिस डेंड्रिटिक सेल इज एंटर इनटू द लिम्फ नोड. कहाँ जाती है, लिम्फ नोड में. इन द लिम्फ नोड द B and T lymphocytes are there. यहाँ क्या होंगे, B and T लिम्फो क्या है यहाँ पर, B and T lymphocytes are there. तो डेंड्रिटिक सेल लिम्फ नोड में जाती है और किस कहाँ जाएंगी, टी लिम्फोसाइट्स के पास, और टी लिम्फोसाइट्स पे जाकर कहेगी कि मैंने क्या किया है, मैं एक फॉरेन एंटीजेंस लाया हूँ और इस एंटीजेंस के अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडीज है या नहीं. नाउ दिस टाइम द एंटीबॉडीज एंटीजेंस रिएक्शन हैज़ टू स्टार्टेड. तब जाकर क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन हैज़ टू बी स्टार्टेड. समझ में आया कि इस टाइप से हमारा एंटीजन एंटीबॉडीज जो वर्किंग होती है इम्यून सिस्टम की वो वर्क करती है. अब इसमें हम फर्स्टली अब किसकी बात करेंगे, दैट इज द MHC. द फुल फॉर्म ऑफ MHC, MHC फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द
measure histocompatibility, measure compatibility, measure histocompatibility complex. The full form of MHC is the measure histocompatibility complex. So these measure histocompatibility complex are found in all the cells of vertebrate. This antigens, ये क्या है complex, या इसको हम क्या कह सकते हैं, that is a antigen. It's also known as a, इसी में लिखेंगे हम, it's also known as HLA. HLA, human leukocytes antigens. Leukocytes measure histocompatibility complex, which also known as a human leukocytes antigen, because we are talking about the human antigens. अगर हम ह्यूमन एंटीजेंस की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA. अंडरलाइन कर लेना इसको. लिखेंगे इसमें इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, लाइन चेंज करके लिखेंगे, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स have molecule on the surface of invertebrates. Animals have molecules, proteinous molecules लिखना, proteinous molecules on the surface of cell, on the surface of cells, those known as measure histocompatibility, measure histocompatibility complex, measure histocompatibility complex. These are not found only the RBC. These are not found only the RBC, either red blood cells. तो रेड ब्लड सेल्स पे तो क्या होते हैं, सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, जो हमने कल बात करी थी. देयर हैज अ एलो एंटीजेंस, सो मे बी देयर हैज अ
either A antigens, B antigen, otherwise RH antigen. So on the RBC surface, the RBC is also having a cell. वो भी क्या एक सेल है, बट उस सेल पर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? There will be the antigen as a A, B and RH. So alloantigens are found on the RBC cells and the other cells having a MSC antigens, either a human leukocytes antigens. ठीक है, कहाँ पर मिल रहे हैं? On the cell surface. सेल सरफेस पे मिल रही है and these antigens having a 3 type of chains. ठीक है, अब MSC एंटीजेंस के बारे में हम डिटेल से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.